کیسی عید القیامت المسیح آپ کی گزری؟ آمین. تھینک یو. آج پہلا تہوار ہے. ہم اب اپنی اس برکت کے لیے جو خدا نے اس زمین پر آ کر ہمارے لیے مقرر کی، آج ہم دیکھیں گے کیا ان برکتوں کو، ان کلام کو، ان باتوں کو جو خدا نے اپنی تعلیم میں، جو جب تک وہ زمین پر رہے انہوں نے خدمت کی، تعلیم شاگردوں کو دی اور شاگردوں نے آگے لوگوں تک پہنچائی اور وہ لوگوں نے اس کلام میں انہیں قلم بند کیا. آج وہ کلام ہمارے ساتھ ہے، ہمارے درمیان میں، ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے گھروں میں ہے، ہمارے دل میں ہے. ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے، ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا، کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ انسان کو کوئی چیز سمجھنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو بتائے گا. کوئی بھی بات اگر وہ بچے کو کچھ سکھایا جائے تو اس میں کون سی ایسی چیز ہوگی جو وہ اس کو سیکھ سکتا ہے؟ عقل. آمین. آج ہمیں بھی اس عقل کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ انسان میں عقل ہے، کدے چاہیے؟ سارے چاہیے، سب میں ہے، کوئی بے عقل ہے ہی نہیں. اگر کوئی کہے نا تو کہ میں بہت ساری عقل رکھتا ہوں، بہت ساری دھنائی ہے میرے پاس، تو انسان کا علم، انسان کی عقل جو زمین پر ہے وہ ناقص ہے. اس وقت تک ناقص ہے جب تک عقل جو ہے وہ اوپر سے نہ آئے. کہاں سے نہ آئے؟ اوپر سے، آسمان سے. جب تک خدا کو کی طرف سے اس شخص کو دھنائی نہیں ملے گی وہ زمین پر بے عقلا ہے. ہم کلام مقدس میں اس بات کو سیکھنے کے لیے یعقوب کا خط ہم تلاوت کریں گے. اس کا 3 باب، یعقوب کا لکھا گیا خط، اس کا 3 باب، اس کی 17ویں آیت میں آج ہم سیکھیں گے کہ انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں انسان کو ملتی ہیں، زمینی برکتیں، آسمانی برکتیں ملتی ہیں، لیکن جب تک وہ چیز جو اس کے لیے ضروری ہے وہ کس کے پاس نہیں ہے تو وہ ان چیزوں کا کچھ فائدہ نہیں. آمین. آئے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں یعقوب کا عام خط، اس کا 3 باب، اس کی 17ویں آیات اور 18ویں آیت کو ہم دیکھیں گے. اور کلام میں لکھا ہے، مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے. جو اوپر سے حکمت آتی ہے اول تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اوپر سے جو چیز آتی ہے وہ 2 نمبر ہوتی ہے. چائنا کی ہوتی ہے، میڈ ان جاپان ہوتی ہے، یا جرمنی کی ہوتی ہے، یا کہاں کی ہوتی ہے، بلکہ وہ کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، سچائی سے بنی ہوئی حکمت ہوتی ہے. لکھا ہے مگر جو حکمت اوپر سے آتی ہے اول تو وہ کیا ہے؟ پاک ہوتی ہے. اور آگے بڑی خوبصورت باتیں ہیں جس کو آج آپ نے سنا ہے. جو اوپر سے حکمت آتی ہے انسان میں، دھنائی، بزرگی، پاکیزگی، راست بازی، سب کچھ اس میں ہے. جو اوپر سے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1 ملنسار، دوسرا حلیم، تیسرا تربیت پذیر، چوتھا رحیم، رحم، اور اچھے پدوں سے لدی ہوئی، بے ترزف دار اور بے ریا ہوتی ہے. صلح
कराने वालों के लिए रास्तबाजी का फल सुलह के साथ बोया जाता है। आमीन। खुदा का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। सब कहें आमीन। आमीन। लिखा है अब तो जो बहुत अच्छी चीज जो इंसान के लिए है वो है हिकमत। और प्रार्थना में अगर हम साल की किताब में पढ़ें तो कलाम में लिखा है कि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। अगर आज हमारे में कोई हिकमत की कमी है, नहीं काम है, सोच नहीं हम सकते, हम अच्छे फैसले नहीं कर सकते, हम अच्छा कदम नहीं उठा सकते, हम अच्छी खिदमत नहीं कर सकते, हम अच्छे फैसले नहीं कर सकते, तो आए हम ऊपर आसमान की तरफ देखें तो कलाम लिखा है अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे। किससे मांगे? कभी शेखों की दुकान पर हिकमत मिली है? चीनी मिलती है, पत्ती मिलती है, दाल मिलती है, जमीनी हिकमत मिलती है। आसमानी हिकमत शेखों की दुकान से नहीं, जनरल स्टोरों से नहीं, चक्की के आटों पर नहीं, बल्कि कहां से? आसमान से। जो अव्वल तो पाक होती है, मिलनसार होती है, पाकीज़गी उसमें होती है, मिलन मोहब्बत होती है। ये फल किससे मिलते हैं? हिकमत से, तनाई से, मिलनसार। अगर कलाम में अक़दस में लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा बाब, बड़ा खूबसूरत बात है ये, बड़ी खूबसूरत ये बात हम तक पहुंचती है। दूसरा बात उसकी 16वीं आयत लिखा है खुदा की अक्ल को किसने जाना कि उसको तारीफ दे सके, मगर हम में मसीह की अक्ल है। क्या लिखा है? हम में किसकी अक्ल है? किसकी अक्ल है? मसीह की। कैसे से मसीह की अक्ल है? कहता है कि मगर किसने खुदा की अक्ल को जाना? अगर किसी ने खुदा की अक्ल को जाना है, खुदा की हिकमत को जाना है, खुदा की कुदरत को जाना है, खुदा के मौजज़ात को जाना है, खुदा की उस हिकमत को जाना है जो जमीन पर उसने आकर खिदमत की, किसने उसकी अक्ल को जाना? उसका जमीन पर आना किसने जाना? उसका जमीन पर आना, निजात का रास्ता खोलना किसने जाना? सॉरी, किसने उसको जाना कि उसने एक काम 40 को देखा है? किसने उसे जाना उसकी हिकमत को कि जिसने कांटों का ताज अपना पहना? किसने जाना? अगर सबने जाना तो वो कहता है उसमें मसीह की अक्ल है। अगर आज हम में कमी है तो हिकमत की अक्ल की कमी है। तो उसे हम जाने, उसे पहचाने कि उसका जमीन पर आना, इस जमीन पर अपना वक्त गुजारना, खुदा की मर्जी को पूरा करना। क्या हम इस मर्जी को पूरा करते हैं? अभी हमने पिछले दिनों उसकी मूवी को देखा, उसने कहा कि ऐ बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि मेरी मर्जी। किसने खुदा की अक्ल को जाना? उसने अपना फैसला अपनी अक्ल का काम ही लिया। उसने कहा नहीं बाप, जो तेरा फैसला है, जो तेरे हुक्म है, जो तेरी हिकमत है, जो तेरा फैसला है, जो तूने मुझे जमीन पर भेज दिया, मैं इस मर्जी में तेरी इस हिकमत को, तेरी इस बातों को जमीन पर पूरा करने के लिए आया हूँ। अगर आज हम इस जमीन पर पैदा हुए हैं, 26 साल, 27 साल, 28 साल, 53 से अगर हम हैं, तो क्या हमने उसकी अक्ल को जाना? अगर उसने कहा कि तुम में, लिखा है क्या पढ़ेंगे? लिखा है तुम
मगर हम में मसीह की अकल है। ये सवालिया निशान आगे लिखा है, हमें मसीह की अकल है, वहां उसने दौड़ डाला है। क्या आज हम देखना है कि मसीह की अकल हम में है, मसीह की अकल उसमें होती है, मसीह की बातें जिसमें होगी हम सब में है। कोई शख्स नहीं कह सकता कि खुदा के रूह के बगैर हम जिंदा हैं। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि ये जो सांस मेरे अंदर है मैंने फलानी जगह से लिया। ब्लड ले सकते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है तो हम किसी का ब्लड हम ले सकते हैं, लेकिन किसी का रूह हम में नहीं आ सकता। लेकिन एक ही रूह है जो हर इंसान की जिंदगी में काम करता है, वो बेटे की शक्ल में भी और आसमानी बाप की शक्ल में भी। हालेलुया। वो एक ही रूह है, एक ही अकल है जो हम में काम करती है। और आज देखना ये है कि हम उस अकल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आज हमने देखना है कि हम इस अकल को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी दूसरे बाप की 13वीं आयत में लिखा है, और हम इन बातों को उन अल्फाजों में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाई हो, बल्कि उन अल्फाजों में जो रूह ने सिखाई हैं, रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। रूहानी बातों का जिस्मानी बातों के साथ क्या करते हैं, हम मुकाबला करते हैं। लेकिन जो रूह, जो दनाई, जो हिकमत जो उसकी तरफ से है, वो आज मसीह की अकल हम में है, तो ये कलाम हमारे अंदर है। अगर ये बातें हमें फर्जी तौर पर, हम अक्सर कहते हैं दुआ में एक लफ्ज़ पर बोलते हैं, खुदा हमें सुनने वाले कान दे, ये ना हो एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे। अक्सर हम दुआ में एक लफ्ज़ को बोलते हैं, लेकिन हमारे दरमियान में खुदा ने 2 कान दिए हैं, दोनों तरफ से। ये नहीं कि एक तरफ से बंद डाले, जब मर्जी बंद डाल लो तो जब मर्जी खोल लो, नहीं। खुदा ने हमें 2 कान दिए, सुनने वाले कान, सुनने वाला कान और समझने वाला दिल, और समझने वाला ज़हन और कबूल करने वाला दिल हमें दिया है। और ये अकल उस वक्त आती है, हिकमत उस वक्त आती है कि जब इन सब बातों का खौफ हमारे दिल में होता है। इसलिए मुझे कहा कि इस खौफ, खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। और जो खौफ को शुरू कर देता है, अब हिकमत को पैदा करने के लिए एक तरीका है कि खुदा के खौफ में हम अपने आप को गुजारें। खुदा के खौफ में ना बिना झूठी गवाही नहीं देना, ना बिना गाली नहीं देना, ना बिना झूठ नहीं बोलना, ना बिना कोई ऐसा बदली काम नहीं करना जो हमें खुदा से दूर हो जाए। ये सब बातें जो 10 हुक्म जो खुदा ने मूसा को दिए, अगर उन 10 हुक्मों को भी अपने दिल में रखेंगे तो खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में शुरू होना शुरू हो जाता है। और जब खौफ शुरू हो जाता है तो हिकमत जो अव्वल तो क्या है, वो क्या है, पाक है। वो कहां से आती है, ऊपर से आती है। हिकमत कहां से आती है, खुदा का खौफ कहां से आता है, खुदा कहां रहता है, यीशु मसीह कहां है, तो ऊपर से आएगी। अगर ऊपर से आएगी, अव्वल तो वो पाक है, मिलनसार है, मोहब्बत है, हलीम है, पाकीज़गी उसमें है, रास्तबाजी के उसके फल उसमें है। ये सब कुछ हिकमत में है, खौफ में है। अगर आज हमारी जिंदगी में यीशु का खौफ है, उसके हुक्म है, तो आए हम अपने आप को उन सब बातों में जो अव्वल तो हिकमत हमारे पास जो है उसे पाक करें। सबसे बड़ी बात, अगर मसीह की अकल हम में है तो हम उस अकल को क्या करना है, पाक करना है। ये ना कहें कि जो हमने इंसानी अल्फाज लिखा है कि उन बातों को जो उन अल्फाज में नहीं बयान करते, जो इंसानी हिकमत ने हमें सिखाई है। हमें जो इंसानी हिकमत सिखाई गई है उस पर गौर ना करें,
اس پر توجہ نہ کریں بلکہ ان باتوں پر عمل کریں جو روحانی ہوں، جو ملتسار ہوں، جو معاف کرنے والی ہو، جو پاکیزگی ہو، جو پھلوں سے لدی ہو۔ حکمت ان میں ہے، دھنائی ان میں ہے جن میں خدا کا خوف ہے۔ اگر خدا کا خوف نہیں تو ہم کیا ہیں؟ ان آدمیوں کی مانند ہے۔ اسی بات میں لکھا ہے 14ویں آیت میں، مگر نفسانی آدمی خدا کے روحی باتوں کو قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک بے وقوف کی باتیں ہیں، نہ وہ انہیں سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ روحانی طور پر پرکھی جاتی ہیں۔ لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا۔ اگر ہم روحانی باتوں کو غور سے، عقل سے، روحی یسوع کی عقل سے اسے قبول کریں گے تو ہمیں پرکھنے کی بھی روح ہمیں خدا عطا کرے گا۔ اگر ہم نفسانی طور پر، جسمانی طور پر اس حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو سمجھیں گے تو وہ لکھا ہے کہ وہ اس کے نزدیک بے وقوفی کی باتیں ہیں جو نہیں سمجھ سکتی۔ لیکن جو روحانی طور پر سمجھتا ہے، جو روحانی طور پر انہیں قبول کرتا ہے تو پھل تو وہ پھلوں سے لدی رہتی ہے اور بہت سا پھل لاتی ہے اور وہ اپنے لوگوں کو برکت دیتی ہے۔ خدا ہم سب کو عقل دلائی اور فہم عطا کرے تاکہ ہم ان سب باتوں میں خدا کی اس عقل کو حاصل کریں جو اس نے لکھ دیا ہے کہ مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ آئے ہم مسیح کی عقل کو جو ہم میں ہے اسے محفوظ رکھیں، اسے خدا کے کلام سے، خدا کی باتوں سے اپنے آپ کو لپیٹے رکھیں۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم سب شکر